Welcome back again, subscribers, followers, community members. As we have actually like conducted the first Telegram live class for the pathology boosters early morning, and we have covered almost like all general pathology terms related to the cell injuries, inflammation, what are the causes, what are the effects, apoptosis, necrosis भी हमने उसमें cover कर लिया था अच्छा खासा. And due to some technical reason I was not like able to continue that particular pathology booster for longer, but right now I'm just like thinking like it's very good thing कि हम उसे फिर से restart कर सके. Right now like we are going to talk about like key diseases of the cardiovascular system. Okay, so अच्छी खासी pathology है इसमें. So pathology of cardiovascular system. So cardiovascular system includes heart, blood vessels, and the blood circulating within them. And disorders of the CVS, that is cardiovascular system, terms as cardiovascular diseases, CVDs. And they are the leading cause of morbidity and the mortality worldwide. Okay. So pathological changes in this system can involve structural and functional abnormalities. Okay. सो उसके की डिसीजेस जो है हम वो देख लेते हैं. लाइक फर्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस इन विच अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अफेक्टिंग द लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरीज इज देयर. सो उसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली क्या होती है. लाइक देयर इज अ एंडोथेलियल इंजुरी ड्यू टू हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, diabetes, and there are lot of other factors also. Okay. सो उसकी वजह से क्या हो जाता है. लाइक देयर इज अ लिपोप्रोटीन डिपोजिशन, देयर इज इन्फ्लेमेशन, एंड ड्यू टू दैट देयर इज लाइक स्मूथ मसल जो होता है वो सेल्स प्लोरिफरेट हो जाते हैं एंड विच लीड्स टू द प्लैक फॉर्मेशन. सो पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द एंडोथेलियल इंजुरी एंड फाइनल आउटकम होता है उसका लाइक देयर इज अ प्लैक फॉर्मेशन विद इन लार्ज एंड medium size arteries. So that is all about atherosclerosis. So morphological features क्या होते हैं इसमें. Let's say like fatty streak is there. There is lipid laden macrophages also known as foam cells. उसकी वजह से fatty streaks आ जाता है. Then there is a fibrous plaque which is nothing but a raised lesion causing a lumen narrowing. तो lumen जो होती है वो narrow हो जाती है fibrous plaques की वजह से. Then there are complicated plaques like ulceration होता है, कभी कभी calcification होता है, और even thrombosis भी होता है. So all these are the morphological features of atherosclerosis pathology, जिसमें fatty streaks, fibrous plaques and complicated plaques are seen. So उसके clinical complications क्या क्या हो सकते हैं. लाइक मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, and there can be a peripheral vascular disease also. Okay. So second pathology इसमें हम कवर करने वाले हैं hypertension. Like before going to that topic, let's say कि daily MCQ test weekdays में ही होती है. And let me remind you another thing कि weekend में हम वीकली एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट करते हैं. ओके. सो उसकी आज टेस्ट सभी जगह शेयर की गई है एंड पीपल आर जस्ट लाइक रिस्पॉन्डिंग टू इट. सो इट्स वेरी गुड दैट यू आर एंगेजिंग इन दिस एक्टिविटीज. तो काफी काफी वो एक थिंग है. उसके बाद में हम देखते हैं. सॉरी फॉर द नॉइज. उसके बाद में कुछ अपडेट मैं देने वाला था. शायद मॉर्निंग में मैं भूल गया था रिगार्डिंग. तो दैट इज अबाउट लेट्स से एनहांसमेंट कोर्सेज. ठीक है. तो वी हैव प्लान टू कंडक्ट एनहांसमेंट कोर्सेज स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर
और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, लाइक वी हु आर रेडी टू जस्ट लाइक एंटर द वर्ल्ड ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, तो उनके लिए, और मे बी लाइक इंटर्न्स भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, लाइक इफ यू आर फ्रॉम अकोला और विदर्भ रीजन, अगर आप इस नियर बाय एरिया में हो, तो यू कैन जस्ट लाइक व्हाट्सएप एनहेंसमेंट कोर्सेस, ये भी आपने टाइप कर दिया टू 8975172145, then you can just register for that enhancement courses which we are going to conduct this year. So December 31st तक हम उसको कवर करने वाले हैं, and the main topics of that enhancement courses for the let's say first and the final year or interns. So उसमें वैक्स कार्विंग आ जाएगी फर्स्ट वाली, हैंड्स ऑन डेमो लेक्चर्स रहेंगे उसमें, और अपर एंड लोअर टीथ एनाटॉमी जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं, और दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट सेशन, 2 या 3 घंटे का रहेगा, और बाकी डिटेल्स आपको वो व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट लेट्स से कि बेसिक्स टू द रूट कैनल एक्सेस, उसके लिए हम लाइक वी आर प्रोवाइडिंग एक्सट्रैक्टेड टीथ, सो मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एक्सट्रैक्टेड टीथ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लाइक दे आर अवेलेबल। आप उसको रजिस्टर कर देने के बाद में आपको बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट जो है, जो लगने वाली है फॉर द लेट्स से डेमोज के लिए या हैंड्स ऑन के लिए, वो भी आपको मिल जाएगी। एंड राइट नाउ इज टोटली फ्री, सो अर्ली बर्ड ऑफर है, यू कैन जस्ट लाइक register for that, enroll your name, and you will be actually getting these 3 to 4 enhancement courses for our let's say कुछ कम्युनिटी के लिए। तो रूट कैनल बेसिक्स टू द रूट कैनल एक्सेस हो गया, तो उसमें वी आर गोइंग टू शेयर सम ऑफ द रिसोर्सेस, स्लाइड शेयर हो जाएंगी उसमें, लाइक मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एंटीरियर पोस्टीरियर की रूट कैनल एक्सेस ओपनिंग के बारे में स्पेसिफिकली, लाइक बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन भी हम उसमें कवर करने वाले हैं, होपफुली टाइम अलाउज, अगर लंबा उसको खींच सकते हैं तो वी विल बी आल्सो डूइंग बोथ सिंग, रोटरी भी हम उसमें देखने वाले हैं एंड मैनुअल प्रिपरेशन भी देखने वाले हैं। और फाइनल जो होता है ऑब्चुरेशन, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बेसिक्स टू द रूट कैनल एक्सेस। ये हो गया एंडोडोंटिक एनहांसमेंट कोर्सेज के बारे में। अगर आप किसी दूसरे सिटी से हो महाराष्ट्र के, और मे बी लाइक यू आर फ्रॉम रीजन्स लाइक नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, तो आपको अगर उस सेंटर पे भी लगता है कि लाइक वी आर लेट्स से ग्रुप ऑफ 5 to 10 स्टूडेंट्स, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे कंडक्ट करो, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू दैट। उसके लिए भी आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ग्रुप एनरोलमेंट कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट लेट्स से एनहांसमेंट कोर्सेज फॉर एंडोडोंटिक्स। तो उसके बाद में हम वी आर कंडक्टिंग आल्सो प्रोस्टोडोंटिक्स के भी कुछ हम ये करने वाले हैं एनहांसमेंट कोर्सेज, इन विच क्राउन प्रिपरेशन विल बी द टॉपिक। सो मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एंटीरियर पोस्टीरियर टीथ की एक्सट्रैक्टेड टूथ पे क्राउन कटिंग का हैंड्स ऑन, क्राउन कटिंग का डेमो, अलॉन्ग विद सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक स्लाइड्स, या जो भी कुछ बुक्स हम हमारे पास है, हमारे टीम ने रेडी की है, लाइक दैट विल बी आल्सो लाइक वी विल बी शेयरिंग। सो टिल दिसंबर तक वो है, अर्ली बर्ड ऑफर इज टोटली फ्री, दैट वाज द थिंग। अकोला में तो फ्री ही रहेगी, अदर सेंटर्स जो है दैट माइट इन्वॉल्व सम ऑफ द लेट्स से उसमें कुछ आपको फीस भरनी पड़ सकती है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट पूरा सेटअप करना। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट मिनिमम जो भी कुछ रहेगा लाइक नॉन प्रॉफिट बेसिस पे ही हम उसको कंडक्ट करा देंगे। सो दैट वाज द थिंग। So let's move towards like second cardiovascular pathology. It's like a hypertension. Okay, so it's a persistent elevation of blood pressure more than 140/90 mm of Hg. So what are the different types of hypertension? So it's a primary, that is essential, and it's like cause is unknown, and it accounts for total 90 to 95% of the hypertension cases. While secondary hypertension is due to the renal, endocrine, or vascular disorders. So they will account let's say 5 to 10% ही आएंगे secondary. उसके pathological effects क्या है? So in hypertension, let's say there is a left ventricular hypertrophy and there is a heart failure. Hypertensions में ये pathological effects देखे जाते हैं. And for blood vessels,
there is hyaline arteriosclerosis, there is hyperplastic arteriosclerosis. तो ब्लड वेसल्स में ये चीजें देखी जा सकती है, जिसको हम ऑनियन स्किनिंग भी बोलते हैं फॉर हाइपरप्लास्टिक आर्टियोस्क्लेरोसिस। जैसे हमने देखा कि हाइपरट्रॉफी कैन बी देयर, अट्रॉफी कैन बी देयर, हाइपरप्लाजिया कैन बी देयर। ये सारे आउटकम्स होते हैं किसी भी सेल इंजरी के या सेल इन्फ्लेमेशन के। और किडनीज में भी देखे जाता है, लाइक इफ देयर इज अ नेफ्रोस्क्लेरोसिस, देन दैट इज आल्सो कॉज ऑफ pathological effect of hypertension, not cause of, but is a pathological effect of hypertension। किडनीज पे भी उसका इफेक्ट होता है। आफ्टर atherosclerosis, hypertension, let's move toward ischemic heart disease, IHD। So it is caused by the reduced blood supply to myocardium, usually due to atherosclerosis। So, what are the different types of ischemic heart diseases? So, angina pectoris is first, myocardial infarction is second, then there is a chronic ischemic heart disease, or last and the most critical is sudden cardiac death। So, these are the different types of ischemic heart diseases। So, in angina, like there are different types, like stable होती है, अनस्टेबल होती है, एंड प्रिंस मेटल एंजाइना भी होती है। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें एमसीक्यू पूछे ही जाते हैं। शायद उसको हम थोड़ा सा और कवर करेंगे फार्मेकोलॉजी में, जब हम वो टॉपिक लेंगे सीवीएस का सेकंड वाला पार्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द हार्ट डिजीजेस? ओके, तो सिंपली क्या होता है उसमें, अर्ली चेंजेस जो होते हैं, where coagulative necrosis is there, और न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन भी दिखता है। अर्ली पैथोलॉजिकल चेंजेस इन एमआई। और लेट चेंजेस क्या होते हैं? देयर इज मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन अलोंग विद द ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस। सो पैथोलॉजिकल चेंजेस अर्ली वन होते हैं न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, एंड लेट वन होते हैं मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन इन इश्चेमिक हार्ट डिसीजेस। इसमें भी अच्छा खासा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। देन फोर्थ वन इज हार्ट फेल्यूर। सो दैट इज सिंपली द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड वेसल्स इफेक्टिवली। सो उसके टाइप्स कौन से हैं? लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड। सो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर is caused by ischemic heart disease or hypertension, and that leads to the pulmonary congestion and edema, while right-sided heart failure is often secondary to the left-sided failure or pulmonary hypertension, so which leads to systemic congestion, that is edema and hepatomegaly. So pulmonary congestion is related to the left-sided heart failure, while systemic congestion जो होता है edema या hepatomegaly, that is seen in राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब इसके कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी होते हैं, लाइक इन पल्मोनरी एडिमा हेमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस, दैट इज हार्ट फेलियर सेल्स, आर आल्सो सीन। ओके, और मायोसाइट हाइपरट्रॉफी भी देखी जाती है, फाइब्रोसिस भी देखा जाता है। ओके, सो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। Then fifth one is valvular heart diseases, which affects one or more heart valves. So what are the different common conditions for valvular heart diseases? So rheumatic heart disease, that is post streptococcal autoimmune disease affecting mitral valve, that is the most common. And second is infective endocarditis, that is bacterial और फंगल इन्फेक्शन लीडिंग टू द वेजिटेशन, उसकी वजह से भी वो जो हार्ट वॉल डिसीज होते हैं वो होते हैं। देन वी हैव डीजेनरेटिव चेंजेस इन विच देयर इज अ माइट्रल वॉल प्रोलैप्स एंड देयर इज आल्सो कैल्सिफिक एरोटिक स्टेनोसिस। सो ये जितने भी कंडीशंस है दे कम्स अंडर वॉल्वुलर हार्ट डिसीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट और है कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस, which are nothing but the structural abnormalities present at birth.
सो उसमें टाइप्स होते हैं असाइनोटिक एंड साइनोटिक. सो असाइनोटिक टाइप्स में जो होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, दे कैन बी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दैट इज ASD. They can be ventricular septal defects, that is VSD, or they can be patent ductus arteriosus, PDA. So all these three congenital heart diseases are acyanotic. Which one? ASD, VSD, and PDA. While the cyanotic congenital heart diseases are tetralogy of Fallot एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. सो इस पे भी अच्छा खासा रिपीट एमसीक्यूज आए हैं रिगार्डिंग टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. ठीक है. सो सेवंथ इज कार्डियो मायोपैथीज, दैट इज नथिंग बट अ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट मसल्स. और उसके टाइप्स होते हैं, लेट्स से कि डिसऑर्डर्स है हार्ट मसल्स के, सो दे कैन बी डायलेशन हो सकता है या हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और समटाइम्स इट कैन बी अ रिस्ट्रिक्टिव टाइप. सो कार्डियोमायोपैथीज में देखते हैं डायलेशन. सो वेंट्रिकुलर डायलेशन एंड सिस्टोलिक डिसफंक्शन, अगर ये दोनों चीज उसमें रही, सो दैट बिकम्स लाइक अ डायलेटेड डिसऑर्डर ऑफ हार्ट मसल. While in hypertrophy, there are thickened ventricular walls, and that's because like a risk of sudden death on athletes. तो hypertrophy जो केस होती है regarding disorders of heart muscle, that is most common seen in athletes. While restrictive जो होते हैं cardiomyopathies, so they are due to the impaired diastolic feeling due to stiffness. So that was all about cardiomyopathies. अब कुछ पेरिकार्डियल डिसीजेस भी होते हैं विच आर नथिंग बट द डिसऑर्डर्स ऑफ द पेरिकार्डियम. सो उसमें होता है पेरिकार्डाइटिस विच इज सिंपली द इन्फ्लेमेशन वाया वायरल और ऑटो इम्यून कॉजेस. देन आफ्टर पेरिकार्डाइटिस देर इज pericardial effusion in which there is a fluid accumulation which can lead to the cardiac tamponade. और लास्ट वाला है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस विच इज ड्यू टू द क्रोनिक फाइब्रोसिस. सो पेरिकार्डियल डिसीज में पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. तो ये तो सीवीएस के बारे में हमने अच्छा खासा आज कवर कर लिया. लाइक इट्स वीकेंड, मोस्टली सभी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स तो काफी रिलैक्स ही होंगे. लाइक इट्स वेरी गुड थिंग टू टेक अ ब्रेक, बट ज्यादा ब्रेक लेने के बजाय थोड़ा सा लाइक डिफरेंट फॉर्मेट पे भी पढ़ाई कर सकते हैं. एक ऑडियो लाइक व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मुझे शायद पहले पता नहीं था, मैं जब लाइक आई वाज स्टडीइंग इन माय लाइक कॉलेज, तो द थिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू ऑन वीकेंड्स, तो मैं सिंपली एक बुक लेके जाता था. लाइक आई यूज्ड टू विजिट माय लाइब्रेरी, हमारी होती थी कॉलेज में, और I try to like I used to try, let's say कि different टॉपिक्स में सेम बुक के ही बट एट द सेम टाइम पढ़ता था. बिकॉज एक अगर मैं पेज पढ़ता था, मुझे अभी भी याद है, लाइक अगर मुझे कुछ एक टर्म ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगी एक पर्टिकुलर टॉपिक की, तो मैं सिंपली वो टॉपिक फिर से ओपन करता था. और बाद में वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बाद में, रीड करने के बाद में, फिर से मैं फर्स्ट टॉपिक पे जहां से मैंने वो वर्ड या टॉपिक उठाया था वहां पे जाता था. सो दैट वाज द थिंग. वो मेरा जस्ट लाइक मुझे याद आया कि मैं पढ़ाई कैसे करता था. आफ्टर दैट लेट से कि मुझे ऐसा हुआ कि बहुत बहुत बार मुझे बुक्स जो थी, लेट से वो एक ही बुक कम ही पढ़ती थी. तो जितनी भी मैंने रिसेंट एग्जाम दी है, लाइक आई जस्ट लाइक टोटली चेंज माय फॉर्मेट. तो मुझे सभी बुक साथ में ही लगती है. लाइक ऐसा नहीं होता कि एक सिंपल छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी बुक हो अगर सिंगल बुक रहेगी तो आई वोंट बी एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड. बट अगर बुक्स रहो या सिंपली आपके पास ऑनलाइन कुछ पीडीएफ फाइल्स है लैपटॉप कंप्यूटर पे या आईपैड पे या लेट्स से कि वो टैबलेट्स जो होते हैं, अगर उसमें, सो दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग कि वो साथ में ही कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो. तो एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए वो शायद मेरा अप्रोच था. और एकेडमिक जो ईयर थे उसके लिए शायद वो अप्रोच भी मुझे अच्छा लगा था कि सिंपली एक ही बुक पढ़ना एक दिन में. सो दैट वाज द थिंग. आई जस्ट लाइक थॉट कि इट्स पॉडकास्ट है तो शेयर कर दूं.
So moving towards key mechanisms of CVS pathology. So first is endothelial dysfunction, second is thrombosis, third is ischemia, and fourth is inflammation. So endothelial dysfunction triggered by the mechanical stress, toxins, or inflammation, which leads to the reduced nitric oxide production and vascular smooth muscle proliferation. Second one is key mechanism जो होता है पैथोलॉजी में, that is thrombosis. So Virchow's triad, इसमें basically three things होते हैं. Triad है तो there is a endothelial injury, there is stasis of blood flow, and then there is a hypercoagulability. तो थ्रोम्बोसिस में वर्चुअस ट्रायड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एमसीक्यू पूछे ही गए हैं. तो आई विल जस्ट रिपीट कि एंडोथेलियल इंजुरी इज देयर, stasis of the blood flow is there, and most importantly there is a hypercoagulability thrombosis में दिखती है. अब इश्यमिया होता है इज नथिंग बट द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई लीडिंग टू द टिश्यू हाइपोक्सिया, जो एक की मैकेनिज्म है सीवीएस पैथोलॉजी में. एंड जस्ट सिंपली इन्फ्लेमेशन, सो इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डाइटिस. सो ये सिंपली तो डायग्नोस्टिक के पहले हमने सब कुछ देख लिया. तो लेट्स सी कि डायग्नोस्टिक टूल्स जो होते हैं इन सीवीएस पैथोलॉजी वो क्या क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोपैथोलॉजी, दैट इज अथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स होते हैं, थ्रोम्बाई होते हैं, देन देयर आर लाइक मायोकार्डियल नेक्रोसिस के भी हिस्टोपैथोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है. देन डायग्नोस्टिक टूल्स में सेकंड ऑप्शन आता है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई द inflammatory markers in myocarditis or endocarditis. Then we have diagnostic imaging like echocardiography, angiography, and MRI for the structural and the functional assessments. Okay. Conclusion आते हैं like cardiovascular pathology, it encompasses a wide range of the disorders that are often interconnected, and early recognition and management of these conditions are crucial for reducing morbidity and mortality. अब कुछ शायद हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोलॉजी ऑफ सेलुलर डिपॉजिट्स. सो राइट नाउ आई एम आल्सो एट माय क्लिनिक. सो अर्ली मॉर्निंग शायद थोड़ा सा 20 मिनट्स का रिकॉर्ड एपिसोड हुआ था, बिकॉज लाइक इट्स वेरी लाइक डेटा तो लगता ही है सिंपली आपको इतने फॉर्मेट्स में अगर सब कुछ ये करना है. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू गेट डोनेशन, सपोर्ट, असिस्टेंस, कि ये सब चीजें करने के लिए थोड़ा सा फंड्स हमें कभी भी कम ही रहते हैं, बट वी ट्राई टू डू अवर बेस्ट. और हम इसके बारे में लेट से कुछ और भी चीजें करने वाले हैं कि we are just like inviting sponsors also, partners also. That's why like we are like let's say publishing our content on the LinkedIn, कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो होती है स्पेशली डेंटल रिलेटेड और जो जिनको भी नॉन प्रॉफिट वर्क या सीएसएस रिलेटेड एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है, होपफुली वी कैन गेट सम ऑफ द फंडर्स फ्रॉम देयर, या कुछ फाउंडर्स भी हमें मिल सकते हैं who want to associate और like द डेंटल एग्जाम.in जो भी हमारी एक्टिविटी चल रही है. सो वी आर जस्ट लाइक ट्राइंग अवर बेस्ट. अगर वो पॉसिबल हुआ तो वी विल बी एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग्स, बट इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा आ सकता है. वी विल ट्राई टू जस्ट लाइक गेट अ स्टूडियो, वहां से हम जितने भी लाइव क्लासेस है इन वीडियो फॉर्मेट दैट वी आर जस्ट लाइक प्लानिंग. तो उसके लिए भी लाइक वी आर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग live tutors, live teachers, live professors, live associate professors for first, second, third, final इन सब्जेक्ट्स के लिए. एंड स्पेशली डेडिकेटेड जो गुरुजी होते हैं, लाइक बीडीएस गुरुजी कह सकते हैं हम उन्हें, तो वी आर लुकिंग फॉर देम फॉर डेंटल एग्जाम्स.in के लिए. जो भी हम नेक्स्ट डेंटल पीएससी या नेक्स्ट नीट एमडीएस जो भी हम प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी हमें चाहिए. सो यू आर ऑल इनवाइटेड, जितने भी इंटरेस्टेड पॉडकास्टर्स, टीचर, ट्यूटर्स,
या एजुकेटर जिनको लगता है लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू शेयर समथिंग लाइक दैट, कि रिसोर्सेस हम शेयर करें, एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाए अच्छी तरह से, सो यू आर इनवाइटेड. Let's move towards like pathology of cellular deposits. So cellular deposits are the abnormal accumulations of the substances in cells or in extracellular spaces due to the metabolic dysfunctions, due to the environmental exposure, or maybe due to some pathological processes. So these deposits may be intracellular, that is within the cytoplasm or nucleus, or they may be extracellular. So they can be reversible and irreversible. B. So what are the different types of cellular deposits? So first is lipid, also known as steatosis or fatty change. So इसमें देखते हैं like there is a abnormal accumulation of the triglycerides in parenchymal cells and commonly affecting जो होता है liver पे होता है, but they can also occur in the heart, in the kidneys and the muscles. And causes of lipid deposits are alcohol abuse, diabetes, obesity, malnutrition and toxins. और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सिंपली होते हैं लाइक लार्ज लिपिड वैक्यूल्स आर देयर डिस्प्लेसिंग द न्यूक्लियस इन हेपेटोसाइट्स, तो वो एक अच्छी एक है. और एग्जांपल्स आर लाइक अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस एंड समटाइम्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस NAFLD. अब दूसरे डिपॉजिट्स होते हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स. दे आर नथिंग बट द एक्यूमुलेशन इन द मैक्रोफेजेस फॉर्मिंग फोम cells like atherosclerosis, xanthomas और cholesterosis of gallbladder, ये भी उसमें आ जाता है. Then sometimes like protein deposit is there, so intracellular accumulation caused by the excess protein synthesis or defective protein folding or sometimes impaired degradation. So इन सभी की वजह से there can be a protein deposit intracellular. For example, है Mallory bodies in alcoholic liver diseases and neurofibrillary tangles in Alzheimer disease. So इसमें और एक एमसीक्यू कवर हो गया कि Mallory bodies जो होते हैं which are protein deposits and they are seen in alcoholic liver diseases due to intracellular accumulation. और उसका मैकेनिज्म होता है सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, कभी कभी एक्सेस या प्रोटीन फोल्डिंग्स में डिफेक्ट आ जाते हैं और सिंपली प्रोटीन का डिग्रेडेशन है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं. एक अब एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट्स हम देख लेते हैं, लाइक इंट्रा सेलुलर तो हमने देख लिए. ओके, so moving towards extracellular accumulation, that is amyloidosis, misfolded protein aggregate into insoluble fibrils deposited in the tissue. So amyloidosis के टाइप्स है AL, दैट इज उसमें लाइट चेन अमाइलोइडोसिस होता है सीन इन मल्टीपल माइलोमा, और AA दैट इज सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस सीन इन द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. सॉरी. सो उसकी मॉर्फोलॉजी है सिंपली कॉन्गो रेड स्टेन शोज एप्पल ग्रीन बायरफ्रिजेंस अंडर पोलराइज्ड लाइट. सो कॉन्गो रेड स्टेन यूज होती है अमाइलोइडोसिस में, ये भी अच्छा खासा एमसीक्यू आ जाता है उसमें. Then we have after protein or fat, glycogen deposits. So there is a excess glycogen storage due to the metabolic disorders. So what are the different causes? Like diabetes आता है इसमें, where glycogen accumulates in the renal tubular cells or hepatocytes or heart muscles. और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस इसमें पॉम्पी डिसीज है, मैकार्डल डिसीज है, इस पे भी हमसे क्या आ जाता है कि पॉम्पी डिसीज में क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो सकते हैं, ग्लाइकोजन डिसऑर्डर हो सकते हैं, या प्रोटीन या लिपिड. सो पॉम्पी एंड मैकार्डल डिसीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लाइकोजन डिपॉजिट. ठीक है, सिंपली उसकी मॉर्फोलॉजी है कि क्लियर वैक्यूल्स इन द सेल्स एंड PAS स्टेन हाइलाइट्स द ग्लाइकोजन डिपॉजिट. सो ग्लाइकोजन के लिए कौन सी स्टेन यूज हो जाती है? पास इन पॉम्पे डिसीज और लाइक कभी कभी मैकडल डिसीज में भी. देन वी ऑल्सो हैव पिगमेंट डिपॉजिट्स
लाइक लाइपोफुसिन एक ऐसी एंडोजेनियस पिगमेंट है, also known as wear and tear pigment from the lipid peroxidation, and that is seen in aging of the cells, and that is common in liver, heart, and neurons. And second one is melanin, that is produced by the melanocytes and responsible for the pigmentations. Or sometimes there is a hyperpigmentation that is seen in Addison's disease, or hemosiderin pigments भी होते हैं like iron containing pigment seen in the hemochromatosis or chronic hemorrhage. उसमें प्रूशियन ब्लू स्टेन होती है विच हाईलाइट्स द हीमोसिड्रेन डिपॉजिट्स। तो हीमोसिड्रेन जो पिगमेंट है उसके लिए प्रूशियन ब्लू स्टेन यूज होती है। दैट इज आल्सो अ वेरी गुड एमसीक्यू। देन वी हैव बिलीरुबिन विच नथिंग बट द लाइक एक्यूमुलेशन हो जाता है जॉइंटिस में ड्यू टू लीवर डिसीजेस और हीमोलाइसिस। और उसके बाद में होते हैं एक्सोजेनस पिगमेंट्स, दैट इज कार्बन और डिफरेंट टाइप ऑफ टैटूज, वो एक हो जाते हैं। कैल्सिफिकेशन और एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन विच देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द नेक्रोटिक और डैमेज टिश्यूज and despite of the normal serum calcium level, so normal serum calcium level होने के बाद में भी there is a deposition of calcium, so it is called as dystrophic calcification, and examples are atherosclerotic plaques, calcified heart valves, and tuberculous lymph nodes, while there is a metastatic calcification also in which occurs in the normal tissues due to hypercalcemia. So for example like calcium deposits in the lungs, kidneys and gastric mucosa. तो ये हो गया कैल्सिफिकेशन के रिगार्डिंग। राइट नाउ इट्स लाइक अ हाइलाइन चेंज। सो होमोजेनियस, eosinophilic and glassy appearance of the cells और extracellular material, ये सभी चेंजेस होते हैं हाइलाइन चेंजेस में। सो फॉर एग्जांपल हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इन हाइपरटेंशन और मैलरी बॉडीज इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो ये दोनों चीजें होती है लाइक हाइलाइन चेंजेस। तो ये सब तो हो गया। लेट्स सी कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद में वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्रोबेबली फार्माकोलॉजी का या उसका ही कुछ हम लाइव क्लास देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फिर से हम आज आएंगे, कल भी वीकेंड है तो कुछ अपडेट्स रहा तो मैं नीट एमडीएस के ब्रोशर के बारे में तो आई विल बी पोस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। सी यू सून, एंजॉय योर वीकेंड।